Good morning, students. Today we will study lesson number 2.2, the worth of a fabric. Worth means value. Okay, the value of a fabric. Fabric means everybody, I think so. It's a cloth, kapda. Okay, the value of a cloth. Tiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Tiruvalluvar was a great Tamil saint, but was he? He was a great saint poet. Okay, Tamil के saint poet थे, संत थे. He was a poet of who lived more than 2000 years. He lived 2000 years ago. Tirukural is the book of his teaching. Tirukural is the name of the book which his teaching. Okay, it is a greatly loved and respected even today. इट इज़ ग्रेटली लाउड मतलब थिरुकुलर जो बुक है वो अभी भी लोग पसंद करते हैं उसको रिस्पेक्ट करके. एंड हु हैज़ रिटन दैट? तिरुवल्लुवर हैज़ रिटन दिस बुक. ही वॉज ए तमिल पोएट. ओके, तिरुवल्लुवर was a textile weaver. What he was doing, what was profession? He was a textile weaver, means कपड़ा बुनना, कपड़ा ये करते बनाते हैं. He was called that. He was that. He wore beautiful fabrics and sarees and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. Tiruvalluvar का profession, what was his profession? He was a textile weaver, means he used to make cloths, and he used to make beautiful clothes, sarees and all, and he used to sell them in the market. And what type of person he was? He never get angry, never used bad words, never shouted at anyone. Okay, when you get angry, you shout at somebody, you use bad words also. But he was that type of person, very calm, quiet natured person. He never got angry, never used any bad words or nor shouted at anyone. In the same town there lived a rich young man. In the same town where he was staying, there lived a rich young man. What he used to do? He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of the other people. What did this rich man do? He used to roam here and there with his friends. And these friends and he himself, the rich man, used to make fun of the others. यानी ये जो रिच मैन हो अपने दोस्तों के साथ दूसरे का मजाक उड़ाते हुए यहाँ वहाँ भटकते हुए टाइम पास करते थे. I don't believe that people say about this Wallower, said the young man one day. I am sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. जब रिच मैन को when the rich man came to know that Tiruvalluvar never get angry nor use bad words and all, he was very surprised to hear that. उसे काफ़ी सरप्राइज लगा. ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान को कभी गुस्सा ना है, कुछ अपशब्द ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो व्हाट ही चैलेंज, ये बोलते हैं मैं एक दिन उनको गुस्सा दिलाऊंगा और हम लोग मज़ा करेंगे उस वक्त. वी विल हैव द फन. तो बोलते मैं एक दिन उसको गुस्सा दिलाऊंगा और वो हम लोग देखेंगे सब लोग. सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच तिरुवल्लुवर in the market and picked up a beautiful piece of fabric. So the arrogant young man, what did the rich young man? He went to Tiruvalluvar in the Tiruvalluvar's market, जहाँ पे तिरुवल्लुवर अपने फैब्रिक्स क्लॉथ्स को सेल करते थे, बेचते थे, वहाँ पे वो चला जाता है. एंड ही पिक्ड अप ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक. उन्होंने उसने क्या किया, एक अच्छा सुंदर कपड़ा उठा लिया उसके उधर से. How much does this old fabric cost? Now is asking. Okay, जब हम कोई दुकान में जाते हैं, कोई कपड़ा आपको पसंद आता है तो पूछते हैं दुकानदार से कि इस कपड़े का कीमत क्या है. तो वैसे ही वैसे वो रिच मैन ने क्या किया, तिरुवल्लुवर के दुकान में जाके से पूछते हैं इस कपड़े का कॉस्ट क्या है. What does Tiruvalluvar reply? 8 coins. The saint named the price. What he said? 8 coins. इसका कीमत है 8 coins. The young man unfolded the fabrics and tore it into 2. अब इस आदमी ने क्या किया, he tore the fabric, उस कपड़े को फाड़ दिया 2 हिस्सों में. And what is the price of this piece now? अभी वो पूछ रहा है कि इस कपड़े का अब इसका वैल्यू बताओ, उसका कीमत मुझे बता दो. एक कपड़े को उसने 2 हिस्से में बांट दिया. अब उससे पूछ रहा है कि अब इसका कीमत मुझे बताओ.
See over here. Now we said 4 coins. The said answers politely. What did Thiruvalur replied? अभी वो उसको बोलता है इसका कीमत है 4 coins. अगर एक बड़े कपड़े का इससे का 100 रुपीज़ इसका आधा अगर हम ले रहे तो व्हाट हैपेंड, उसका अमाउंट भी हाफ हो जाता है. तो वो बोलता है 4 coins हो गए. एंड इज रिप्लाइड इन ए पोलाइट मैनर. द यूथ वॉज टेकन अबैक. Why doesn't the man get angry? He thought. He then tore the half pieces into half again. जब कोई आपका कीमती कपड़ा उसको फाड़ देता है तो आपको नेचुरली गुस्सा आएगा. आप उसको डांटेंगे, चिल्लाएंगे या मारने दौड़ेंगे. पर इन्होंने क्या कोई यही नहीं, रिएक्ट ही नहीं किया, बल्कि उनको बोल दिया कि अब ये इसका कीमत 4 coins का. तो ये देख के ये रिच यंग मैन को काफ़ी आश्चर्य होला. Why didn't he get angry? He thought. Again what did he do? Again he tore that pieces into half again. फिर जो वो हिस्सा था हाफ का उसका और हाफ कर दिया उसने. अब उसे पूछ रहा है एंड नाउ अगेन ही रिप्लाई 2 coins was the answer. तिरुवल्लुवर ने क्या जवाब दिया? अभी इसका टुकड़े का पीस का 2 coins हुआ. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying and now what is the price now. अभी ये जो देख के एक्चुअली इस रिच यंग मैन व्हाट ही केम फॉर दैट ही विल मेक तिरुवल्लुवर हैंग्री. उसको गुस्सा दिलाएंगे ये सोच कर आया था. पर अब ये इसका पेशेंस देख के उसे काफ़ी इसको बहुत ये इम्पेशेंट हो गया. ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट. बोलते इसको गुस्सा नहीं आ रहा, मैं इसका कपड़े को फाड़ते जा रहा हूँ और ये मुझे उसका कीमत बताते जा रहे. अभी वो उसे बर्दाश्त के बाहर हो गए. ही टोर द पीसेस इनटू हाफ एंड हाफ. वो पीसेस को टुकड़ा टुकड़ा करते करते हाफ बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया. अब फिर से पूछ रहे व्हाट इज़ द प्राइस. तिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half again. और तिरुवल्लुवर क्या थे, वो बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे. जितने टुकड़े उसने करते गए उतने कीमत उन्होंने कम लगाते लगाते गए. एट लास्ट द फैब्रिक वॉज reduced into rags. ओके, बाद में ये कपड़ा फाड़ते फाड़ते क्या हुआ, चिंदी की तरह बन गए, बहुत ही छोटे हो गए. सो तिरुवल्लुवर सेड in a quiet tone, now this fabric has become worthless. I will not name any price for this rag. इसके बावजूद भी वो क्या बोलते हैं, कपड़े का इतने कीमती कपड़े को उस रिच यंग मैन ने टुकड़े टुकड़े करते करते इसे एक छोटा सा पीस बना के रखा. तब वो क्या बोल रहे हैं, अभी ये जो कपड़ा है तो बहुत चिंदी हो गया, छोटा हो गया, इसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है, तो मैं अभी इसका कोई कीमत नहीं लगाऊंगा. द यंग मैन डिड नॉट नो वॉट टू से. अभी ये जो रिच यंग मैन था उसे काफ़ी घमंड था अपने रिचनेस पे. अपने दोस्तों के साथ जाके दूसरे की ये करता, खिंचाई करता था, उनको गुस्सा दिलाता था, उसका मजाक उड़ाता था. अभी इनको उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले. बट ही वॉज प्राउड टू बी रिचेस. एस आई सेड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस. सो ही ऑफर टू पे 8 coins टू द सेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उसको अपना घमंड था रिचनेस के ऊपर, तो उसने क्या किया, पहले जो पूछे थे ना उसने कि इस कपड़े का क्या कीमत है. सो तिरुवल्लुवर सेड दैट 8 coins. तो उसने 8 coins उस संत को ऑफर किया. फॉर द फर्स्ट टाइम तिरुवल्लुवर स्माइल बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी. अभी पहली बार है कि तिरुवल्लुवर के चेहरे में मुस्कान आ गए, पर उन्होंने क्या पैसे लेने से इनकार कर दिया. यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज़. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. तिरुवल्लुवर क्या जवाब देते हैं उसको, रिच यंग मैन को, यंग मैन अभी ये कपड़ा जो है किसी काम का नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता और कोई इसे पहन नहीं सकता, तो मैं इसका कीमत नहीं लूँगा. डू यू नो द फैब्रिक वॉज. नाउ सी द हाउ द फैब्रिक्स आर मेड. यहाँ पे स्टोरी आपकी ख़त्म होती है. ओके, अभी यहाँ पे कपड़ा किस तरह बनाया जाता है एक जगह पे, यहाँ पे कपड़े का इसमें कहाँ कैसे कपड़े बनाए जाते हैं इसकी जानकारी हमें दी जा रही है. सी ओ हियर, डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे. मैनी पीपल हैव टोल्ड इट टू मेक इट. द फार्मर हु ग्रू कॉटन इन दिस फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन. यानी कपड़ा क्या है, एक दिन में बनाया नहीं जाता, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई थी. एक फार्मर क्या करता है, अपने खेत में कॉटन को ग्रो करता है और काफ़ी महीने उसका
उसका उसका देखभाल करता है, उसे ये संभालता है। थ्रू द सन एंड रेन, बारिश के समय क्यों ना हो या सन हो, तेज़ धूप में ही क्यों ना हो, वो अपने चीज़ को ध्यान देता है खेती में। ही पिक्ड कॉटन्स फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट टू स्पिनिंग। आप अगर कॉटन का आपने ये पेड़ देखा होगा रुई का, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। सी दिस इज़ द ट्री। यहाँ पे ऊपर से ऐसे फ्लावर्स जैसे होते हैं, वहाँ पे वाइट कॉटन्स आए रहते हैं और उससे हम लोग बॉल्स बोलते हैं। वहाँ से कॉटन्स को निकाल के जमा करके फिर वो फैक्ट्री में दिया जाता है स्पिनिंग के लिए, मतलब उसकी धागा बनाने के लिए। कॉटन को लेके, रुई को लेके धागा बनाया जाता है। देन समवन else carded द कॉटन एंड spun it into लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स। अभी फील्ड से जाके कॉटन्स कहाँ पे जाता है, स्पिनिंग के लिए जाता है, जहाँ पे कॉटन क्या होता है, धागा का रूप लिया जाता है। ओके, द थ्रेड्स वेर डाइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दिस लवली कलर्स। उसके बाद जब धागा बनाया जाता है, व्हेन इट थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम द कॉटन, देन इट इज़ डिप्ड इन द कलर, वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स। ओके, तो उसको बाद में क्या किया, कलर्स में डाला जाता है और तरह तरह के कलर्स के धागे बनाए जाते हैं। माई वाइफ एंड आई हो थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग ए ब्यूटिफुल डिज़ाइन। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, विल बी हैप्पी टू वेयर इट। नाउ दिस इज अ सेंटेंस सेड बाय वन तिरुवल्लर। तिरुवल्लर ये बोलते हैं कि इस तरह के काम सारे होते हैं, कपड़ा बनाने के लिए इतनी सारी मेहनतें लगती है, लोगों की मेहनत लगता है, खून पसीना लगाते, वो इन सब चीज़ को बनाने, एक आकार देने के लिए, खूबसूरत सा कपड़ा बनाने के लिए। तो व्हाट इज सेज, मेरा माई वाइफ एंड आई थॉट, उनकी वाइफ और वो मिलके थ्रेड बनाते हैं टुगेदर, पुटिंग द ब्यूटीफुल डिज़ाइन, और वो उस थ्रेड को लेके अलग अलग तरह के डिज़ाइनर से उसको पिरोते हैं या बनाते। सी ओवर हियर इट इज़ शोन हाउ द वीविंग इज़ डन। यहाँ पे मेल्स फीमेल्स बोथ डू दिस वर्क। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट ए गुड फैब्रिक। ये सारे प्रोसेस होने के बाद में एक अच्छा कपड़ा हमारे सामने आ जाता है विथ वेल डिज़ाइंड एंड ऑल, वेल कलर्ड, वेल डिज़ाइंड। तो बोलते मेरी वाइफ एंड आई तो वो द थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग इट ब्यूटिफुल डिज़ाइन। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक। हम लोगों को लगा था कि एक दिन ऐसा है कि ये जो हम लोग ने मेहनत किया हो सकता है किसी को पसंद आए और वो ले खुशी खुशी और उसे पहन ले। देन ऑल आवर वर्क वुड बी रिवॉर्डेड। अभी कोई आपका चीज़ को पसंद करता है, सराहता है और उसको लेके जाता है, आप कपड़े हो तो पहनते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती, यू फील थ्रिल्ड। बोलते मेरा काम, मैंने जितनी मेहनत की वो इन सब चीज़ का क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ उसका, एक ये नहीं हुआ कि ऐसा कहीं फेंका नहीं गया, किसी ने इस्तेमाल किया उसे। यू थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक, see over here, when you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor and went into its making। जब आपने इसको सब फाड़ के टुकड़े टुकड़े किए, सारे लोगों की मेहनत क्या हुई, बेकार हो गए। सारे लोगों की प्यार से बनाई हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं बची। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। और आपके जो पैसे हैं वो इन सब चीज़ों को वापस नहीं ला सकते। किसी ने बहुत प्यार से कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसको आप खराब करते तो क्या हुआ, उसका प्यार का यू डिसरिस्पेक्ट दैट लव एंड ऑल। और जो मेहनत को भी आप ये करते। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, नाउ यू आर रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ये जो बातें जब रिच यंग मैन ने सुना तो उसको बहुत शर्म आई अपने पर, क्योंकि उसने काफ़ी गलत काम किया था। एंड डू यू नो, तिरुवल्लर went on to say, I can view another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless action, it will be destroyed. वो क्या बोल रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, अगर वक्त में हम उसको ये करें तो अच्छी बन जाती है, अगर उसे हम डिस्ट्रॉय करें तो वो किसी काम की नहीं रह जाती। अपनी लाइफ भी ऐसे ही है, अगर अच्छे कामों में डालें, अच्छी चीज़ विचार रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर गलत राह पे चलेंगे, गलत सोच रखेंगे, गलत किसी का करना चाहेंगे तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। योर लाइफ इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड अनदर people's life is also destroyed. Tiruvalla's words opened the young man's eyes. There
देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। तो ये बात उसको बहुत छू गई मन को, और उसके बाद और रिच यंग मैन ने ये किया कि वो अपना ऐसे बुरी आदतें और यहाँ वहाँ भटकना, यहाँ वहाँ ये करना छोड़ देगा और अच्छे काम पे अपनी ज़िंदगी बिताएगा, इसने वो डिसाइड किया। दिस इज़ व्हाट द लेसन was. I will revise it in the next part also, and assignment will be given according to it. Thank you.